السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے ہاتھ سے محبت کے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 11۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس امیزنگ ناول۔ شہیر تک انایا کی پریگننسی کی خبر پہنچ چکی تھی اور اسے نئے سرے سے اپنے نقصان کا دکھ ہو رہا تھا اور انایا سے نفرت مزید بڑھ گئی۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سارے برتن الٹ دیے۔ مام، کتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ اپنی اس بے وفا بھتیجی کا ذکر میرے گھر میں نہیں کیا کریں، ورنہ جو دو وقت کا کھانا گھر میں کھاتا ہوں وہ بھی نہیں کھایا کروں گا۔ اگر میرا آنا اتنا ہی ناگوار لگتا ہے تو بتا دیں، میں اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ 2 گھڑی کا سکون لینے دیں مجھے۔ محمل کہتے کہتے وہ رک گیا، کیونکہ بس شہیر اسے محمل کہتا تھا۔ پیار سے انایا کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شدید نفرت ہے مجھے اس سے۔ تم اپنا رویہ ٹھیک کرو، دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، اور انایا سے شادی میں تمہاری کروا کر رہوں گی۔ کوئی قصور نہیں اس بچی کا، وہ تمہارے گھٹیا اور بغیرت دوست نے سب کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس کا ابورشن نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ جبکہ اس بات پر شہیر نے اپنی ماں کا خیال نہ کرتے ہوئے سگریٹ سلگا لیا اور ایک کش لیا۔ بس کسی طرح وہ اپنی گھٹن باہر نکالنا چاہتا تھا، جو کہ انایا کی جان جانے کی بات پہ اسے ہوئی تھی۔ جبکہ فرحت بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ ویسے موم، آپ بھی نا کتنی بھولی ہیں۔ اس نے کہا کہ عمر نے یہ سب کیا ہے تو آپ نے مان لیا۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی بد کرداری چھپانے کے لیے اور حمزہ کو بچانے کے لیے عمر کا نام لے رہی ہے؟ لیکن مجھے پتا ہے عمر نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ تو US تھا۔ بیٹا، کبھی بھی کسی پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کرو۔ آخر کو تو عمر نے ایسا کیا ہے تو وہ عمر کا نام لے رہی ہے نا، ورنہ کسی اور کا بھی تو لے سکتی تھی۔ اپنی بدگمانی دور کرو۔ انایا ابارشن کے لیے جا رہی ہے، پر میں نہیں چاہتی کہ اس کی جان چلی جائے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو ساری زندگی کا پچھتاوا دے جائے گی تمہیں۔ جبکہ اپنی موم کی اس بات پر شہیر نے لب بھینج لیے۔ سوری موم، آپ نے غلط جگہ امید لگا لی ہے۔ اگر دنیا کی آخری لڑکی ہو تب بھی میں اس سے شادی نہ کروں، اور ویسے بھی آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس کی بد کرداری کے ثبوت کو میں اپنا نام دوں؟ ایسا تو سوچیے گا بھی مت۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل لوں۔ شہیر، تمہاری انا اور غرور تمہیں لے ڈوبے گا جس دن اس بچی کی بے گناہی ثابت ہو گئی، فرحت بیگم نے روتے ہوئے شہیر سے کہا، جبکہ وہ لب بھیج کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ کس موڑ پر مجھے لے آئی ہو تم انایا، کہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا پڑ رہا ہے؟ پر ایک بات تو طے ہے، تم جتنے بھی ہٹ کنڈے اپنا لو، میں تم سے شادی تو نہیں کروں گا۔ وہ دل ہی مر گیا جس میں تم رہتی تھی۔ شہیر نے سوچا۔ نیو یارک میں عمر ایک کلب میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے ایک تھرکتی ہوئی لڑکی پر تھی، جو کہ اس کی نیو گرل فرینڈ تھی۔ وہ ایک انگریز لڑکی تھی۔ اب بس بھی کرو عمر، اور کتنی شراب پیو گے؟ کم آن، لیٹس ڈانس۔ اوکے بیبی، چلو۔ دونوں ڈانس کرنے لگے، جبکہ لڑکی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، روم میں چلیں، زیادہ انجوائے کریں گے۔ جس پر عمر مسکرایا۔ دونوں روم میں چلے گئے، جبکہ عمر نے لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، جس پر لڑکی مسکرائی۔ شراب کا نشہ اس پہ چڑھ رہا تھا۔ لڑکی نے عمر کی شرٹ کا پہلا بٹن کھولا کہ عمر نے لڑکی کے کندھے پر سر رکھ لیا اور زور سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ بہت خوبصورت ہو انایا، بہت زیادہ۔ پھر سے میری باہوں میں آ کے مجھے سکون بخش دو۔ میں ترس گیا ہوں پھر سے تمہاری قربت کے لیے۔ کم آن بیبی، پلیز۔ جبکہ لڑکی نے عمر کو زور سے جھنجھوڑا۔ I am Jolly, not Anaya. Who is Anaya? جب عمر نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر لڑکی کو غور سے دیکھا، وہ واقعی ہی انایا نہیں تھی۔ انایا کہاں ہے؟ ابھی تو میرے ساتھ تھی۔ بیبی، مجھے لگتا ہے تم نے زیادہ ڈرنک کر لی ہے، اس لیے یہ پلان کل پر رکھتے ہیں، ابھی گھر جاتے ہیں۔
نہیں، میں ایسے خوبصورت پلان کینسل نہیں کرتا۔ مجھے ویسے بھی سکون چاہیے، اور مجھے بھی، لڑکی نے دلکشی سے کہا، جبکہ عمر نے لڑکی کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود بھی ساتھ گر گیا اور لڑکی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ لیکن جیسے ہی لڑکی کا چہرہ قریب آیا، اسے ایک دم سے انایا کا چہرہ نظر آ گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے ناپاک مت کرو۔ انایا کی باتیں ذہن میں گونجنے لگی۔ عمر نے زور سے لڑکی کو خود سے دور دھکا دیا۔ جولی، مجھے لگتا ہے میری واقعی ہی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں، تم بعد میں آ جانا۔ یہ کہہ کر عمر تیزی سے باہر کی طرف چل دیا اور پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ انایا کیوں میرے ذہن سے نکل نہیں رہی؟ 3 مہینے ہونے والے ہیں، لیکن میں ابھی تک اس دن کے زیر اثر ہوں۔ 3 مہینے سے اس کا خیال ذہن سے چمٹ کر رہ گیا ہے۔ عجیب تماشا ہے یہ، عمر نے زج ہو کر سوچا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارحا کو حمزہ کی اتنی شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی کہ وہ اسے تھپڑ مار دے گا، اور وہ بھی انایا کی وجہ سے۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ تو میں ٹھیک تھی حمزہ، کہ واقعی ہی تمہارے انایا کے ساتھ گہرے مراسم ہیں، اسی لیے تو اس کے خلاف بولنا تم سے برداشت نہیں ہوا۔ اگر انایا کے ساتھ ہی ایسے تعلق رکھنے تھے تو میری زندگی میں کیوں آئے؟ کیوں مجھے ان راہوں پر گھسیٹا کہ جن سے واپسی ناممکن ہے؟ کیوں میری زندگی کا ناسور بن گئے ہو؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ دھوکے باز، بے وفا ہو تم۔ میں کیوں نہ سمجھ سکی کہ بھولے چہرے کے پیچھے تمہارا کتنا گھناؤنا روپ ہے؟ عیاش لڑکے ہو تم، بد کردار۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ اپنے رشتوں کو لے کر کتنی پوزیسو ہوں میں، لیکن تم مجھے سمجھ ہی نہیں سکے میری بات۔ بہت بڑے کھلاڑی ہو تم، میرے دل کے ساتھ کھل گئے اور لٹائی دیکھو، اپنا جرم بھی نہیں مان رہے۔ کچھ دن پہلے جو یہ محبت کا جذبہ مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اب وہی وبال جان بن گیا ہے میرے لیے۔ کاش کہ میں اپنی زندگی کی طرح تمہیں دل سے نکال سکتی، تو میری اذیت بھی کچھ کم ہو جاتی۔ تم نے جو زہر میری زندگی میں گھولا ہے، خود کیسے خوش رہ سکو گے؟ کسی کا دل توڑنے والا کیسے سکون سے رہتا ہے؟ کیا اس کا دل ملامت نہیں کرتا اسے؟ پر تم تو پتہ نہیں کب سے میرے دل کے ساتھ کھیل رہے تھے، انایا کے ساتھ مل کر۔ اب تو انایا تمہارے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ پتہ نہیں ایسے کتنے بچوں کو اب تک دنیا میں آنے سے پہلے ہی تم دونوں نے مار دیا ہوگا۔ اتنے گھٹیا ہو تم دونوں۔ ضرور بہن بھی ایسی ہوگی۔ یہ تو شکر ہے کہ بھائی اس کے چنگل سے نکل گئے ہیں، ورنہ بہن بھی آ کر ہمارے خاندان کو تباہ کر دیتی۔ اور ویسے بھی میں کبھی انایا جیسی ناگن کی بہن کے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ نہ ہونے دوں۔ ابھی وہ کچھ اور بھی خود ساختہ سوچوں میں گھری رہتی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارحا نے جلدی سے آنکھیں صاف کیں، آ جائیں، جبکہ سمینہ بیگم کے ساتھ ساحر کو اندر آتا دیکھ کر وہ اٹھ گئی اور ان کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ ساحر نے آگے بڑھ کر ارحا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے میری گڑیا، پریشان ہے کیا؟ کیا نہیں بھائی، ایسی بات نہیں، وہ بس میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، سر میں درد تھا۔ اچھا، بعد میں سونا، پہلے اٹھو، کھانا کھاؤ۔ شاباش موم، آپ کھانا لے کر آئیں، ہم دونوں آج کمرے میں کھانا کھائیں گے۔ سمینہ بیگم نے ملازمہ سے کھانا منگوایا اور ساحر اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلانے لگا، جبکہ ارحا ایک دم ساحر کے گلے لگ کر رونے لگی، جبکہ ساحر اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ رو نہیں میرا بچہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا بھائی، لیکن ارحا کیا پتا تمہاری غلط فہمی ہو، حمزہ ٹھیک کہہ رہا۔ نہیں بھائی، اپنی آنکھوں سے میں نے دونوں کو دیکھا ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ اچھا چلو اب چھوڑو، کچھ نہ سوچو، آرام سے کھانا کھاؤ۔ ارسلان صبح ایکسرسائز کے بعد کچن میں آیا تو اس کی موم اور اشال ناشتہ بنا رہی تھی۔ السلام علیکم بیوٹیفل لیڈیز۔ جب اشال نے ارسلان کی طرف دیکھا تو جلدی سے نظریں جھکا لی، کیونکہ وہ شرٹ لیس تھا۔ ایکسرسائز کی وجہ سے اس کے
پھولے مسلس نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ ارسلان تھوڑا سا اشال کے پاس آ کر پلیٹ میں سے فروٹ اٹھانے لگا، اور اشال نے اپنی سانس روک لی کیونکہ وہ بالکل اشال کے قریب آ گیا تھا۔ فروٹ اٹھاتے وقت اس کا کندھا اشال سے مس ہوا۔ اشال نے اپنی آنکھیں موند لی۔ ارسلان کن اکھیوں سے اشال کو دیکھ رہا تھا اور اشال کی طرف جھک کر سرگوشی میں بولا، آنکھیں کھول لو اب، اور پیچھے کی طرف ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ ارسلان کی موم نے گھور کر ارسلان کی طرف دیکھا۔ کیا یار موم، فروٹ ہی تو کھا رہا ہوں۔ ہاں کھا لینا، لیکن جاؤ پہلے نہا کے آؤ، پسینے میں بھیگے ہوئے ہو مکمل، اور شرٹ بھی پہنو۔ موم، بھوک سے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں، نہا دو، بعد میں لوں گا نا۔ ارسلان نے شائستہ بیگم کے ساتھ لپٹ کے کہا اور سارا پسینہ ان کے دوپٹے سے صاف کیا۔ اف ارسلان، سستی کی بھی حد ہوتی ہے۔ ارسلان، میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور ادھر تمہاری حرکتیں ابھی بھی بچوں جیسی ہیں۔ شائستہ بیگم نے انڈا پھینٹتے جھنجھلا کے کہا۔ جبکہ شادی کی بات پر اشال کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے، جو کہ ارسلان نے گہری نظروں سے دیکھے۔ اشال کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی، جبکہ ارسلان اشال کو تنگ کرنے کے لیے اشال کے تھوڑا سامنے ہو کر کھڑا ہو گیا، جس سے اشال کی نظر ارسلان پر پڑ سکے۔ اشال نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ارسلان کو سامنے کھڑا دیکھ کر سٹپٹا کر نظریں واپس پھیر لیں، جبکہ ارسلان نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ یار موم، آپ ابھی کی بات کر رہی ہیں؟ میرے تو بچے بھی ہو گئے، میں نے تب بھی نہیں سدھرنا، ایسے ہی رہوں گا، اور شائستہ بیگم کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ اچھا اب مجھے چھوڑو بھی، تمہارے ڈیڈ کو ناشتہ دینا ہے، جبکہ تمہارے لاڈ ہی ختم نہیں ہو رہے۔ یار موم، یہ غلط ہے، آپ اپنے سرتاج کی اب چھٹی کروائیں، ہمیشہ وہ میری جگہ لے لیتے ہیں، آپ کو ہمیشہ ان کی فکر رہتی ہے، بیٹے کی تو کوئی فکر ہی نہیں۔ ارسلان نے منہ بسور کر کہا، اسی لیے تو میں تمہاری شادی کروا رہی ہوں، تاکہ تمہاری فکر کرنے والی بھی آ جائے۔ جبکہ اشال ماں بیٹے کو چھوڑ کر کچن سے نکل گئی۔ اسے پتا تھا ارسلان نے تو جانا نہیں، وہ خود ہی چلی جائے، ایسے ہی بغیر شرٹ کے ڈھیٹ بن کے کھڑا رہے گا۔ جبکہ اشال کے جانے کے بعد ارسلان کی موم نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ شرم کیا کرو، جوان بیٹی گھر میں ہے اور تم اس حلیے میں گھومتے رہتے ہو، ابھی بھی بیچاری تمہاری وجہ سے چلی گئی ہے۔ موم، یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا؟ گھومو، لیکن ننگے ہو کر نہیں۔ جبکہ ارسلان نے دان دکھائے، میں تو ایسے ہی گھوموں گا، اور شائستہ بیگم اپنے ڈھیٹ بیٹے کو گھور کر رہ گئی۔ ڈھٹائی میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، پاپا پہ گیا ہونا اس لیے۔ ارسلان یہ کہہ کر جلدی سے کچن سے نکل گیا، جبکہ شائستہ بیگم مسکرا کر رہ گئی۔ جب شائستہ بیگم ناشتہ لے کر آئیں تو اشال پہلے سے ہی ان کے شوہر کو ناشتہ دے رہی تھی، اور ارسلان شرٹ پہن کے باپ کے پاس بیٹھا تھا اور باپ کو شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جن کا منہ پھولا ہوا تھا۔ بیگم، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کا ایک عدد شوہر بھی ہے جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ناشتے کا انتظار کر رہا ہے، اور آپ ماں بیٹے کے راز و نیاز ہی ختم نہیں ہو رہے۔ خضر صاحب نے اپنی بیوی کو دیکھ کر جل کر کہا، جبکہ وہ مسکراہٹ ضبط کر کے رہ گئی۔ کیا جلسر باپ ملا ہے مجھے، واہ ربا تیری شان، دنیا میں کیا کیا دکھاتا ہے تو۔ ارسلان نے شرارت سے کہا۔ اشال مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنی پلیٹ پر جھک گئی، جبکہ خضر صاحب نے گھور کر اپنے سپوت کو دیکھا، جو جب سے دنیا میں آیا تھا مجال ہے جو دونوں میاں بیوی کو دو پل بھی ساتھ گزارنے دے، بس اسے پتہ لگا نہیں کہ ماں باپ ساتھ ہیں، فوراً سے جن کی طرح نمودار ہو گیا۔ آپ بھی نا بس کیا کریں، ہر وقت میرے بیٹے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آپ کے اس مسئلے کا حل ہے میرے پاس، کیوں نہ ہم ارسلان کی شادی کر دیں۔ جبکہ اس بات پر خضر صاحب کی ہنسی نکل گئی۔ شادی اور اس کی ہو ہی نہ جائے کہیں، ایسی شکل کو کون بیٹی دے گا۔ جبکہ ارسلان کو اس بات پر پتنگے لگ گئے۔ محترم والد صاحب، اگر آپ کو یاد ہو یا پھر آپ کی نظر کمزور نہ ہو تو میں شکل میں بالکل آپ پر ہوں، بلکہ آپ سے زیادہ ہینڈسم، تو جب آپ کو اتنی خوبصورت بیوی مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں۔
बेटा, शक्ल के साथ साथ करतूतें भी अच्छी होनी चाहिए, जो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। ऊँट के ऊँट हो गए हो, अकल फिर भी नहीं आई। घर में नंगे घूमते रहते हो। खिज़ा साहब ने थोड़ी देर पहले शर्ट के बगैर घूमने पे चोट की। बहुत नाशुक्रा बाप है मेरा मॉम। असल में मेरी बॉडी से जलते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती आप इनसे शादी के लिए मान कैसे गई, जबकि इशाल अरसलान की हालत से महफूज हो रही थी, क्योंकि इसे बस इसका बाप ही काबू कर सकता था। शाइस्ता बेगम सर पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचना रोज़ बाप बेटे का मामूल था, जबकि दर हकीकत दोनों की एक दूसरे में जान बसी थी। सानिया आज नेहा के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी, क्योंकि घर का माहौल बहुत टेंशन ज़दा हुआ था। इसे वहशत हो रही थी देखकर, जिस घर में तीनों बहनों की खिलखिलाहटें गूंजती थी अब वही वीरान खंडर सा लगता था। हर कोई एक दूसरे से नज़रें चुरा रहा था। ऐसे में नेहा बहुत छोटी थी, सानिया तो समझदार थी, लेकिन नेहा सहम कर रह गई थी। बहुत सी बातों को वो अभी नहीं समझती थी। इसकी जहनी कंडीशन ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से घर वाले बहुत मुतफिक्र थे। इसलिए आज सानिया इसे बहाने से बाहर लेकर आई थी। नेहा मेरी जान, किसी रेस्टोरेंट चलें, तुम्हारी पसंद का खाना खाते हैं। नहीं आपी यार, मुझे भूख नहीं है। अरे क्यों नहीं भूख, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बल्कि पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। चलो चलते हैं, जल्दी उठो शाबाश। सानिया ने नेहा की पसंद का खाना ऑर्डर किया था। वो बैठी थी कि साहिर, जो कि एक क्लाइंट के साथ वहाँ मीटिंग्स के लिए आया हुआ था, इसकी नज़र दोनों पर पड़ गई। वो गायब दिमागी से क्लाइंट की बात सुन रहा था कि जैसे तैसे मीटिंग ख़त्म हुई। तब तक सानिया और नेहा भी जाने के लिए उठ गई, लेकिन सानिया को अपने नाम की पुकार बहुत करीब से सुनाई दी। इसने पीछे देखा तो साहिर था। सानिया ने नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गई, जबकि साहिर बेताबाना सानिया के पीछे लपका। सानिया, बात तो सुनो प्लीज़। नेहू जाओ बेटा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ, सानिया ने नेहा से कहा, जबकि नेहा के जाने के बाद वह साहिर की तरफ मुतवज्जह हुई। जी बोलें। सानी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की पापा को मनाने की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। प्लीज़ सानी, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, रिश्तों के धागों में उलझ कर रह गया हूँ। सानी, मेरी ज़िंदगी भी वहीं पर रुक गई है। पूरी रात मेरी इसी सोच में गुजर जाती है कि कैसे कोई राह निकल जाए कि तुम्हें छोड़ना ना पड़े, क्योंकि मेरा सुकून ख़त्म हो गया है। अगर आपकी बात ख़त्म हो गई हो तो मैं जाऊं? सानी प्लीज़ कुछ तो कहो, कोई शिकवा ही कर लो। जबकि सानिया एस्तराज़िया से मुस्कराई। शिकवा तो अपनों से किया जाता है, अजनबियों से तो नहीं। सनी प्लीज़, अगर अनाया और हमजा इस हद तक ना जाते तो शायद। शट अप, जस्ट शट अप। सानिया चीखी, अगर मेरी बहन के खिलाफ ज़रा भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही तुम्हारी बहन की बकवास की वजह से मेरी बहन ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम लोग शरीफ हो, हम बदकिरदार लोग हैं, तो छोड़ दो हमारा पीछा। क्यों नहीं जान छोड़ते हमारी? जाकर अपने जैसी कोई शरीफ शादी ढूंढो। हम तुम लोगों के मयार के मुताबिक नहीं। अरे तुम पहले कदम पर ही साथ छोड़ गए, मंजिल तक कैसे साथ चलते? तुम्हारे जैसे बुज़दिल से मैं किसी किस्म का रिश्ता नहीं बनाना चाहती। बहुत जल्द मेरी शादी की खबर तुम तक पहुंच जाएगी। आखिर कोई तो ज़र्फ वाला मुझे भी अपना ही लेगा। सानिया ये बोलकर चली गई, जबकि साहिर वहीं साकित खड़ा का खड़ा रह गया। साहिर से बात करने के बाद सानिया गाड़ी में आकर बैठ गई थी और ड्राइवर से गाड़ी चलाने का बोला। इसी दौरान नेहा सो गई थी। इसकी आदत थी कि सफ़र लंबा हो या छोटा, वो सो जाती थी। सानिया ने मुस्कुराकर अपने कंधे पर नेहा का सर रखा और नेहा का चेहरा देखने लगी। आंसू कतार दर कतार सानिया की आंखों से बह रहे थे। साहिर, अपनी बहनों को मैं तुमसे बढ़कर चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मोहब्बत बेख्तियार जज्बा है, जो कि मुझे तुमसे हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती इस मुश्किल वक्त में। और शायद मेरी तरह तुम भी मजबूर हो गए हो, पर मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ देते।
लेकिन तुम अपने यकीन की डोर तो मुझे थमाते और कुछ नहीं तो मेरा दर्द ही बांट लेते, हमदर्द बनकर मुझसे हालात का पूछते। फिर मैं पूरी ज़िंदगी भी तुम्हारा इंतज़ार कर लेती। अगर अपना नहीं सकते थे तो दोस्त बनकर मुझे कोई तसल्ली ही दे देते, ऐसी तसल्ली जो हमजा भाई आप ही को देते हैं और इनकी ढाल बनकर खड़े हैं। इस मुश्किल वक्त में हमें भाई की कमी का एहसास नहीं होने दे रहे। मेरे बाबा की पुश्त पर खड़े हैं, मेरे बाबा का हौसला नहीं टूटने दे रहे, सारे इल्ज़ाम चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी बहन ने इनका दिल छलनी छलनी कर दिया है, वो टूट कर रह गए हैं, बस हमें जाहिर नहीं करवा रहे। और जाहिर करवाएं भी कैसे? इनका दुख दर्द बांटने वाली खुद ज़हनी अजियत का शिकार है। क्यों दुनिया वालों ने इनके रिश्ते को गाली बना दिया है? ये दुनिया वाकई ही बहुत जालिम है, लेकिन तुम तो जालिम न बनते, तुम्हें तो अपना समझा था मैंने। मुझे लगता था इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। लेकिन साहिर, अगर कभी खुदा मुझे दोबारा भी मौका देगा तो मैं अपने रिश्ते ही को चुनूंगी। ये सोचकर सानिया घटी घटी आवाज़ में रोने लगी, क्योंकि इसे डर था इसके आंसू नेहा न देख ले। जबकि इन्हीं सोचों में घर आ गया और सानिया ने आंसू साफ किए और जल्दी से गाड़ी से निकल गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी आंखों की नमी कोई घर में देखे। उमर दोबारा चोली से नहीं मिला था, जिसकी वजह से आज वो इसके घर आई थी, लेकिन वो अपने कमरे में सोया हुआ था। मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। अबे कौन है यार, आ जाओ। सुबह सुबह उठाने के लिए आ जाते हैं सब। अंदर से अमर की झंझलाहट भरी आवाज़ आई, साहब बाहर कोई जोली मैडम आई हैं, आपको बुला रही हैं। जबकि जोली के नाम पर इसे वो रात याद आई जब अनाया के ख्याल से वो जोली से दूर हुआ था। इसे याद ही नहीं था दोबारा जोली से मिलना। अच्छा ठीक है, अंदर भेजो इसे। जब जोली रूम में आई तो वो औंधे मुँह शर्टलेस लेटा हुआ था। जोली की उम्र को देखकर आंखें चमकी। वाओ डार्लिंग, यू लुकिंग सो हॉट। जबकि जोली की आवाज़ पर उमर सीधा हुआ और जोली की नज़रों में अपने लिए स्टाइश देकर मुस्कुराया। उमर की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि लड़कियां इसकी तरफ खींची चली आती थी और उमर को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा था। वाहिद अनाया थी जिसने इसे घास नहीं डाली थी और इसने इस चीज़ का बदला लिया था इससे। पहली दफ़ा तो इसे कोई लड़की इस कदर हसीन लगी थी, लेकिन जब इसने इनकार किया तो इसकी अना पर कारी वार हुआ था, क्योंकि वो बिगड़ा हुआ शहज़ादा था। जो चीज़ इसे हासिल नहीं होती थी इसे तोड़ देता था, और बिल्कुल इसी तरह वो अनाया को भी तोड़ आया था। सही गलत का फ़र्क भूल गया था। इसके लिए शायद ये आम बात थी, लेकिन इसे नहीं पता था इसने अपने अमल से अनाया के लिए क़यामत बर्पा कर दी थी और ख़ुद वो आराम से बैठा था। कुछ इसके दिल में चोट था जिसकी वजह से वो शहीर से रब्ता नहीं कर रहा था। कम ऑन डार्लिंग, इतनी दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ। जबकि जोली मुस्कुरा कर पास आ गई। इसकी ज़िंदगी में भी बहुत लड़के इसके तलबगार थे, पर इसे उम्र से शदीद किस्म की अट्रैक्शन हो गई थी और वे इसे हासिल करने के लिए हर हद तक गुजर जाना चाहती थी। इसके जहन पर सिर्फ उमर सवार था। उमर ने जोली के पास आने पर इसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो लहराकर उमर के ऊपर गिरी। जबकि उमर ने मुस्कुराती आंखों से इसे देखा और इसने नज़ाकत से उमर के मुंह पर अपने नाखून से खराश डाली। जबकि उमर ने इसके बालों में मुँह छुपाकर इसके ताज़ा किए शैम्पू की खुशबू महसूस की, लेकिन वो सब महसूस न कर सका जो वो चाहता था, या जिस खुशबू का वो मुंतज़िर था, जिसे दोबारा महसूस करना चाहता था। कितनी रातें इसने जाकर गुजारी थी, कितनी लड़कियों के पास जाने की कोशिश की थी, पर पता नहीं क्यों खुद ही इनको दूर छटक देता था। हालांकि वो हुसन को सराहना जानता था, लेकिन अब वो अपनी ही हालत से बेजार था। डार्लिंग, यू नो, तुम में वो नशा नहीं जो उसमें था, और मैं वही नशा दोबारा चाहता हूँ। और मैंने जोली के कान में सरगोशी की और इसे पीछे करके खुद बेड से उठकर सिगरेट सुलगा ली। जबकि जोली जो उमर की तरफ से किसी और रद्द अमल की मुंतज़िर थी, तैश से बल खाकर रह गई। इसे उमर पर बेहद गुस्सा आया जो वो अपनी कुर्बत नहीं दे रहा था इसे। तुम यूँ मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते उमर। जबकि उमर ने अब्रो अचकाकर इसे देखा। मैंने कब की इंसल्ट तुम्हारी? ये इंसल्ट ही तो है। उस दिन भी तुम मेरे इतने करीब आकर भी किसी और को तलाश कर रहे थे मुझ में, और जब वो नहीं मिली तो तुमने मुझे धुतकार दिया, और आज फिर तुमने वही किया है। आखिर वो कौन है ब्लडी बिच जो तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रही?
जस्ट शट अप जोली, खबरदार जो तुमने अपनी गंदी ज़बान से इसके लिए एक भी बुरा लफ्ज़ निकाला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो मेरे पर्सनल्स में इंटरफेयर करे। जबकि जोली ने उमर का रिएक्शन देख एकदम से पैंतरा बदला। सॉरी डार्लिंग, अगर तुम मेरी वजह से हर्ट हुए, रियली सॉरी। मैं आगे से कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। जबकि उमर इससे हाथ छुड़वाकर बाथरूम में बंद हो गया, जबकि इसे अपने रिएक्शन पर हैरानी हो रही थी कि कैसे इसने ऐसे बोला। मुझे एक दफ़ा पाकिस्तान शहीर को कॉल करनी चाहिए। अनाया हमजा के बिल्कुल सामने नहीं आ रही थी। जब वो घर आता था इसे पता लगता था कि वो आया है तो बाहर नहीं निकलती थी कमरे से, क्योंकि वो खुद को इरहा और हमजा का कसूरवार समझती थी। इसे लगता था कि हमजा की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वो इसकी वजह से हुआ है, और कुछ हमजा ने इसे ऐसी हालत में देखा था कि जब भी वो सोचती थी कि इसका मरने का दिल चाहता था। इसने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में कभी वो हमजा के सामने ऐसे बेपर्दा होगी। पर सोचा तो ये भी नहीं था जो हो रहा था। अनाया के दिल से हुक निकली। अभी वो सोचों में गुम थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। अनाया ने दरवाज़ा खोला तो सामने हमजा था। अनाया ने दरवाज़ा वापस बंद करना चाहा, लेकिन हमजा ने जल्दी से हाथ आगे कर लिया और इस दौरान हमजा का हाथ दरवाजे में बहुत ज़ोर का आ गया। अनाया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सच सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनाया ने हमजा के हाथ को देखते कहा, जिसकी स्किन उतर गई थी और खून निकल रहा था। जबकि हमजा सपाट नज़रों से अनाया को देख रहा था, जिसे अनाया ने नज़रें चुराई और हाथ छोड़ दिया। अनाया जाने लगी तो हमजा ने दुरुस्तगी से अनाया को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। छोड़ो मुझे हमजा, अनाया ने बहुत छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। जब बाजू न छुड़वा सकी तो बेबसी से आंखों में आंसू आ गए। कर ली कोशिश या अभी और भी करनी है, हमजा ने तंजिया कहा, जबकि अनाया ने सर ना उठाने की कसम खाई थी। क्या वजह है जो तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो? क्या कसूर है मेरा? हाँ बताओ मुझे। जबकि अनाया चुप रही। बोलो, अब बोलो क्यों नहीं रही? हमजा ने सख्ती से कहा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है हमजा, सारा कसूर मेरा है, अनाया ने ज़मीन को घूरते हुए कहा। जबकि हमजा ने अनाया का मुंह पकड़कर ज़बरदस्ती ऊपर किया। मेरी आंखों में देखकर बात करो, किस कसूर की बात कर रही हो तुम? अगर तुम मेरे साथ ना होते तो आज इरहा तुम्हारे साथ होती। तुम्हारी आंखों में जो रत जगह की सुर्खी और हिजर का दर्द नज़र आ रहा है वो ना होता। मैंने तुम्हारी आंखों के ख्वाब नोच लिए। हमजा, अभी भी तुम मुझसे मेरा कसूर पूछ रहे हो? मेरी वजह से तुम्हारे किरदार पे लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पे मेरे नाम की स्याही मल रहे हैं। मैं अपना कौन कौन सा कसूर गवाऊँ तुम्हें? हमजा, मेरी वजह से इरहा ने साहिर और अनाया का रिश्ता ख़त्म करवा दिया है। अपनी बहन की उदासी जब देखती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। मेरे डैड की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। इनकी हालत देखती हूँ तो अपने खुदा से मौत की दुआ मांगती हूँ। अपनी बकवास बंद करो अनाया, खबरदार जो तुमने अब ऐसी घटिया हरकत की जो पहले करती आई हो। अब अगर तुमने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और कोई कसूर नहीं तुम्हारा। जो हुआ वो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका था। और इरहा की क्या बात करती हो तुम? अगर तो इसे मोहब्बत थी तो पहले मुझ पे एतबार करती। इसको पहले दिन से एतबार नहीं था और इसे मौका मिल गया और वो हाथ छुड़वा कर चली गई। अगर तो ये मोहब्बत है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत। और कौन सी मोहब्बत जो इरहा ने मुझसे और शहीद ने तुमसे की? अगर ये मोहब्बत है तो मैं नहीं मानता इस मोहब्बत को जिसमें महबूब पर एतबार ही ना हो। जब हमें इनकी ज़रूरत हो तो वो हमारे साथ ही ना हो। वो मोहब्बत जिसमें महबूब की कोई कमज़ोरी नज़र आई नहीं कि उससे हाथ छुड़वा लिया। महबूब के तो 100 ऐब भी मुआफ़ होते हैं, मोहब्बत में तो महबूब जान भी निकाल दे तो ज़बान से उफ़ नहीं निकलती। 100 गुनाह भी मुआफ़ कर देते हैं। असल मोहब्बत वो है जो हमारा खुदा हमसे करता है। या मोहब्बत की एक शक्ल वो थी जो करबला में इमाम अली मकाम ने दिखाई थी। फिर हमारे माँ बाप। मोहब्बत एक बहुत पकीज़ा जज्बा है अनाया, इसमें तोहमत या गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होते। हम सादा लोग मोहब्बत के नाम पर अक्सर धोखा खा जाते हैं।
कोई इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता और जो करता है वो इश्क की महराज को छू लेता है। महबूब इसके अंदर बस जाता है और ये लोग अल्लाह के चुने हुए होते हैं। अनाया, आंखें खोलो और ख़ुद को कसूरवार समझना छोड़ दो। जबकि अनाया ज़ारों की तरह रोती रही। मैं सुबह अबॉर्शन के लिए जा रही हूँ, मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। अनाया ने हमजा से कहा, क्या ये सब ज़रूरी है अनाया? हाँ, ये सब ज़रूरी है। मैं किसी तौर भी इस बच्चे को नहीं अपना सकती, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगी, कभी आगे नहीं बढ़ सकूँगी। और क्या जवाब दूँगी दुनिया वालों को कि मैं कुंवारी माँ बन गई हूँ? क्या बोलूँगी कि ये नाजायज़ बच्चा है जिसका कोई बाप ही नहीं और कोई भी इतने ज़र्फ़ वाला नहीं जो इस बच्चे को अपना सकेगा। अगर ये दुनिया में आ भी गया तो इसकी कोई ज़िंदगी नहीं होगी और मेरी बदकिरदारी का सबूत लोगों को मिल जाएगा। जहाँ मेरी थू थू नहीं हुई वहाँ भी हो जाएगी। और मेरी फैमिली जिस दौर से अब गुजरी है फिर सारी ज़िंदगी इन्हीं हालातों में रहेगी। मैं इस बच्चे को दुनिया में लाकर अपनी बहनों की राहों में कांटे बखेर दूंगी हमजा। और मैं ये नहीं कर सकती। वो हज़रत मरियम थी जिनके बेटे ने इनकी गोद में अपनी माँ के शफा पकीज़ा किरदार की गवाही दे दी थी। लोगों के मुंह बंद हो गए थे। मैं तो एक आम इंसान हूँ, मेरा यकीन कोई नहीं करेगा हमजा। और मैं अब अपनी वजह से अपनी फैमिली को किसी किस्म के इम्तिहान में नहीं डाल सकती। मैं इतनी खुद गर्ज नहीं हो सकती। अनाया हमजा को ये नहीं बता सकती थी कि इस अबॉर्शन के बाद इसके बचने के सिर्फ 5% चांसेस थे, या इससे भी कम हो। तो पहले ही खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। अब जब मौका मिल रहा था तो कैसे गंवा देती इस मौके को। इसलिए आज आखिरी दफ़ा वो हमजा से अपने सारे दुख दर्द बांट रही थी। हमजा को अनाया के डैड ने अपने कमरे में बुलाया था। हमजा जब आया तो वो आंखें मूंद कर रॉकिंग चेयर पर झूल रहे थे। हमजा ने गौर से देखा तो इनकी आंखों के नीचे गहरे हल्के थे, चेहरा जरती माइल हुआ हुआ था। हमजा दिल भर आया क्योंकि वो अनाया के डैड को अपने ही डैड की तरह समझता था और कभी इनको इस हालत में देखेगा इसने सोचा नहीं था। हमजा ने गला खंखार कर इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आपने बुलाया था अंकल? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया था, कुछ बातें करनी थी। क्योंकि तुमसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? इस मुश्किल वक्त में तुमने साथ देकर मुझे ये बता दिया कि कौन अपना है और कौन गैर। उन्होंने शहीर को सोचते हुए कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम सानिया के लिए कोई रिश्ता देखो। और उन्होंने वक्फा लिया, और उमर को भी ढूंढो। जबकि हमजा ने अचनपे से इन्हें देखा। आपके कहने का क्या मतलब है अंकल? बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का गुनहगार ही इसे अब अपना ले, क्योंकि कोई भी मेरी बेटी को नहीं अपनाएगा। इसका दामन दागदार हो गया है, जिस पे उम्मीद थी इसने छोड़ दिया तो लोग क्या करेंगे? अंकल आपने ये सोचा भी कैसे कि वह बगैरत अनाया के लायक है? बस बेटा मजबूरी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मैं इसके पाँव पड़ जाऊंगा कि मेरी बेटी पर अपने नाम की चादर तान दे, वरना लोग मेरी बेटी को जीने नहीं देंगे। तो मेरे बेटे की जगह पर हो, मेरा ये काम कर दो। ऐसा हो गया तो लोग कुछ ही वक्त में सब भूल भाल जाएंगे। जबकि अनाया जो अपने डैड के कमरे में इनसे मिलने आ रही थी, इसने अपने डैड की सारी बातें सुन ली और इसे उमर की कही बात याद आई कि तुम रोते हुए मेरे पास आओगी। इसे नफरत महसूस हुई और इसने अपने अबॉर्शन के फैसले पे मुहर लगा दी कि अब ये सब करना नागुरेस हो गया था। उमर के पास जाना इसे बिल्कुल गवारा नहीं था। अरसलान आजकल प्रोजेक्ट में बहुत बिजी था, क्योंकि वो शहर पर ज़्यादा लोड नहीं डाल रहा था। काम का वजह शहर की मेंटली कंडीशन थी, इसलिए रोज़ रात देर से घर आता था। आज भी 12 बजने वाले थे लेकिन अरसलान नहीं आया था। इशाल ने शाइस्ता बेगम को बोल दिया था कि वो आराम करें। अरसलान घर आएगा तो वो इसे खाना दे देंगी। इशाल अरसलान का इंतज़ार करते करते हॉल में ही सोफे पर सो गई थी। अरसलान घर आया तो इसने अपने मॉम डैड के कमरे की तरफ देखा, जिसकी लाइट ऑफ थी, मतलब वो सो चुके थे। इसने शुक्र किया, क्योंकि अगर वो इतनी लेट आता तो इनको टेंशन होती और इनका बीपी हाई हो जाता था। अरसलान अपने कमरे में जाने का इरादा रखता था, लेकिन सोफे पर नज़र पड़ते ठटक कर रुक गया। इशाल की तरफ देखा जो आड़ी तिरछी सोफे पर बैठी कम लेटी ज़्यादा थी, एक हाथ गाल के नीचे रखा था, मतलब वो इसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। अरसलान को दिली खुशी महसूस हुई और सोते हुए वो बहुत मासूम भी लग रही थी। वो थी भी बहुत खूबसूरत, या फिर अरसलान को ही इतनी खूबसूरत लगती थी। वो समझ ना सका। वो एहसास से चलते हुए सोफे के पास आया और इशाल को उठाने लगा।
اشال اٹھو، ارسلان نے دو تین آوازیں دی، لیکن شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ ارسلان کو اندازہ ہوا کہ وہ بہت گہری نیند میں سوتی ہے۔ ارسلان نے اس کے کندھے سے ہلایا کہ اشال نے آنکھیں کھولی، جبکہ دونوں کی نظریں چار ہوئی اور ایک ہی لے پر دونوں کے دل دھڑکے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ اپنے ہی دل کی پکار پر گھبرا کر ارسلان تھوڑا پیچھے ہٹا، جبکہ اشال بھی سٹپٹا کر اٹھ گئی۔ سوری، وہ میں انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ پھوپھو نے آپ کو کھانا دینے کا بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم کھانا گرم کر کے لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ارسلان جب تک چینج کر کے آیا، اشال کھانا لگا چکی تھی۔ ارسلان کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ اس نے اشال سے پوچھا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ ڈنر میں نہیں تھا، تو اس کا دل بھی نہیں کیا کہ وہ کھانا کھائے۔ اسے لگا کہ وہ جب آئے گا کھانا کھائے گا تو بعد میں وہ بھی کھا لے گی۔ وہ تو دیوانی تھی اس کی محبت میں۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، محبت کی کومل اس کے دل میں پھوٹ گئی تھی، جو کہ اب تناور درخت کی صورت اختیار کر گئی تھی، جس کی جڑیں مضبوطی سے پھیل چکی تھی کہ اگر کوئی وہ درخت کاٹ بھی دیتا تو جڑیں اس کے اندر ہی رہتی۔ جبکہ زبان سے کچھ اور ہی ادا ہوا۔ جی، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کبھی ارسلان کی آنکھوں میں دیکھ سکے کہ جا کے محبت کا اظہار کرنا۔ وہ تو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کرتی تھی کہ کہیں دل کا بھید عیاں نہ ہو جائے۔ اچھا چلو، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ بھی بیٹھ کر تھوڑا کھانا کھا لو، یا پھر میرے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، ارسلان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جبکہ ارسلان کی اس بات پر اشال کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ دل کیا کہ چیخ کر کہہ دے، آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ جواب نہیں دیا میری بات کا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ارسلان، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا پھر بھی کھا لو، بیٹھو۔ جبکہ اب اس کے پاس بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ارسلان جو کھانا کھا رہا تھا وہ اس کی طرف بڑھایا، جبکہ اشال نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا بنایا۔ دھڑکنیں تھی کہ الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ اشال کو لگ رہا تھا کہ جیسے دھڑکنوں کا شور سب کو سنائی دے رہا ہو۔ مشکل سے دو تین نوالے کھا کر اشال نے بس کر دی۔ اس دوران ارسلان کی نظر اس پر تھی جس پر وہ مزید ہلکان ہو رہی تھی۔ پانی تو پی لو۔ ارسلان نے گلاس میں سے دو تین گھونٹ پانی پی کر اس کے آگے رکھ دیا۔ جب اشال نے پانی پی کر گلاس رکھا تو بچا ہوا پانی پھر سے ارسلان نے پی لیا۔ اشال اٹھ کر جانے لگی تو ارسلان نے روک لیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ مزید اشال کو تنگ کرے، کیونکہ اس کی پتلی ہوئی حالت سے وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ مجھے، ارسلان کیوں کہتی ہو؟ بھائی بھی تو بول سکتی ہو، آخر کو تم سے کافی بڑا ہوں میں۔ جبکہ اس سوال پر اشال نے اپنی سانسیں روک لی۔ اب وہ کیا جواب دیتی اسے کہ کیوں نہیں بھائی بولتی؟ وہ چپ ہی رہی۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو، بتاؤ؟ ارسلان نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ آپ کو نیند نہیں آئی؟ مجھے تو بہت آ رہی ہے، اشال نے کہا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، ارسلان نے فوراً کہا۔ لیکن آپ نے صبح آفس جانا ہے، آپ سو جائیں، اشال نے کہا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، ارسلان نے تھوڑا سا اشال کی طرف جھک کر کہا۔ وہ میں اس لیے بولتی ہوں کہ پھوپھو اور انکل بھی آپ کو ارسلان کہتے ہیں۔ جبکہ اشال کے اس بہانے پر ارسلان کا قہقہ بے ساختہ ہوا تھا اور اشال کی رونے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ وہ تو مجھے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن میں تم سے تو بڑا ہوں، تم کیوں مجھے نام سے پکارتی ہو، پہلے یہ تو بتاؤ۔ جبکہ وہ خاموش ہی رہی اور ارسلان اٹھ گیا۔ اسے اس کی شکل دیکھ کر ترس آ گیا۔ وہ بھی اٹھی تو ارسلان نے اسے ٹوک دیا۔ آرام سے بیٹھو اور سارا کھانا ختم کر کے جانا۔ وہ خود کمرے میں چلا گیا۔ یہ ان کو کیا ہو گیا تھا آج؟ اشال نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا۔ آج تو انہوں نے جان نکالنے میں میری کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کہیں ان کو پتہ تو نہیں لگ گیا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ثانیہ اپنے کمرے میں نیہا کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ انایا اب ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ تقریباً سب گھر والوں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ نیہا کی شرارتیں بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، اسے اتنی پیار محبت ملا تھا کہ وہ بہت احساس ہو گئی تھی، اور انایا کی تو وہ لاڈلی تھی۔ وہ ثانیہ کی نسبت انایا سے زیادہ اٹیچ تھی۔ وجہ انایا اور نیہا کی چلبلی عادتیں تھیں اور ثانیہ تھوڑی سنجیدہ مزاج تھی۔ کیا ہوا نیہو میری جان، اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ اب تو کوئی بات بھی نہیں کرتی، اور کیا اب تمہیں حمزہ بھائی سے شادی نہیں کرنی؟
आपी, हमजा भाई की शादी तो इरहा आपी से होनी है ना, तो क्यों नहीं हुई? आपी, उस दिन इरहा आपी ने अनाया आपी को कितना डांटा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमजा भाई की शादी ना हो इरहा आपी से, बुरी बात ऐसे नहीं कहते बेटा। वो इरहा आपी से मोहब्बत करते हैं जैसे तुम भी हम दोनों से मोहब्बत करती हो। आपी, हमजा भाई कितने अच्छे हैं, पर मेरी क्लास में ये जो हमारे साथ घर वालों के बच्चे हैं, हमजा भाई और अनाया आपी के लिए बहुत बुरा बोलते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और क्लास में मुझसे बात भी नहीं करते। मैं अकेली बैठी रहती हूँ। लोग झूठ बोलते हैं, तुम उनकी तरफ ध्यान ना दिया करो और सो जाओ। सानिया की आंखों में आंसू आ गए कि किस तरह लोग बच्ची का जहन तबाह कर रहे हैं, इसकी मासूमियत ख़त्म कर रहे हैं। इतने में सानिया का फ़ोन बजने लगा। सानिया ने देखा तो साहिर की कॉल थी। इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। साहिर ने सेकंड के वक्फे से फिर कॉल कर दी। सानिया ने फिर से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। साहिर ने सेकंड के वक्फे से फिर से कॉल कर दी। सानिया ने फिर से डिस्कनेक्ट कर दी। अब साहिर की तरफ से मैसेज मसूल हुआ, इस दफ़ा अगर कॉल अटेंड न की तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ। जबकि सानिया घबरा गई। अब की दफ़ा कॉल आने पर सानिया ने जल्दी से कॉल पिक की। क्या तकलीफ़ है आपको? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? सानिया तो गुस्से से फट पड़ी। जबकि साहिर मुस्कुराने लगा। नफ़रत का ड्रामा अच्छा कर लेती हो। शट अप, ज़्यादा बातें बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं। फ़ोन किस लिए किया है? क्यों मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, सानिया ने फ़ौरन जवाब दिया। लेकिन मैं तो करूँगा, साहिर ने पुरसकून लहजे में कहा। मुझे लगता है आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं, या फिर आप भूल चुके हैं कि हमारा जो रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है। अगर नहीं तो आपकी बहन है ना, आपको याद दिलाने के लिए। आप कॉल करने से पहले अपनी बहन या डैड से तो पूछ लेते कि हम जैसे बदकिरदार लोगों को कॉल करने से कहीं आपका किरदार भी ना खराब हो जाए। सानिया ने तंजिया कहा। कुछ नेहा ना उठ जाए इसलिए वो तभी तभी आवाज़ में बोल रही थी, वरना दिल तो इसका था कि अच्छी खासी सुनाए। साहिर ने ज़बत से सानिया का तंज़ बर्दाश्त किया। अब खुद को एक दफ़ा भी बदकिरदार बोला ना सानिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिर ने गुस्से भरे लहजे में कहा, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। सानिया ने दूब-दूब जवाब दिया। और एक बात याद रखना। क्या कह रही थी तुम? कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी का पता लगेगा मुझे? तो हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, पता तो लगेगा ही मुझे, क्योंकि दूल्हे को नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? सानिया बीबी, ये बात अपने दिल और दिमाग पे बिठा लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। किसी और का तो ख्याल भी मैं तुम्हारे पास ना भटकने दूं। मैं सिर्फ चुप हूँ तो इसमें कोई मसलियत समझो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे दस्तरबेदार हो गया हूँ। बहुत जल्द ये जो अंगूठी तुमने मेरे मुंह पे मारी थी दोबारा से तुम्हारी उंगली में पहनाऊंगा, लेकिन अब अंगूठी पहनाऊंगा तो सही, पर मंगनी की नहीं बल्कि मुंह दिखाई की। इतनी हिम्मत है आप में? हाँ, हिम्मत है और बहुत है। तो मैं दिखाऊंगा। मैं बस ज़रा मुनासिब वक्त आने दो। और वो मुनासिब वक्त कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे डैड ने मेरा रिश्ता देखने को हमजा भाई को बोल दिया है। इस हमजा की तो मैं शट अप, खबरदार जो आपने मेरे भाई को गाली दी। अच्छा जी, नहीं देता तुम्हारे लाडले भाई को गाली, पर इस मेरे साले को समझा देना ज़रा तमीज़ से रहे। साहिर ने जल भुनकर कहा। साहिर, आप ये मौका खो चुके हैं। अब आप सोने के भी बन के आ जाएं तब भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मैं अपने माँ बाप की वो इंसल्ट नहीं भूल सकती जो कि आपके बाप ने की थी और आपकी बहन ने अनाया आपी पर बहतान लगाए थे। और ना ही मैं किसी ऐसे ख़ानदान में जाना पसंद करूंगी जहाँ मेरे माँ बाप की इज्जत ना हो, इन्हें हकारत की नज़र से देखा जाए। जबकि सानिया ने यह बोलकर फ़ोन बंद कर दिया और साहिर ने गुस्से से फ़ोन दीवार से मार दिया, जो कि चकनाचूर हो गया, और गुस्से से गुलदान भी फेंक दिया और खुद बेड पर लेट गया। ये तो तय था कि साहिर को सानिया ना मिली तो वो नहीं जीत सकता था। एक आंसू साहिर की आंखों से निकला और कनपट्टी से होता हुआ बालों में जज़ब हो गया।
या खुदा, ये रिश्तों के कौन से मझधार में फंस गया हूँ मैं, जहाँ मेरे चारों तरफ मेरे अपने खड़े हैं और इनके गिर्द आग ही आग है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक को बचाने का ऑप्शन है। या खुदा, मेरे लिए आसानी पैदा कर। तूने मेरे दिल में सानिया के लिए मोहब्बत पैदा की, अब मेरे दिल को वीरान मत करना। उमर आज फिर एक क्लब में आया हुआ था, इसे अपनी समझ नहीं आ रही थी। हर वक्त अनाया का ख्याल रहता था जहन में। अब तो वो पछता रहा था, वो क्यों अनाया के करीब गया। वो जब भी शहीर को अनाया के साथ सोचता था, इसकी दिमाग की रगें फटने लगती थीं। इतना तो इसे पता था कि शहीर और अनाया की शादी नहीं हुई, क्योंकि अगर हुई होती तो शहीर इसे ज़रूर इनवाइट करता। वो ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था ताकि किसी तरह वो होश में न रहे और अनाया के ख्याल से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल सके। इतने में एक लड़की इसके पास आई। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से इसकी आंखें भी मुश्किल से खुल रही थी। हाय हैंडसम, कम ऑन डांस विद मी। जबकि उमर ने बमुश्किल अपनी आंखें खोलकर इसे देखा। नशा दिमाग पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से सोचों की शक्ल मिल गई। इस लड़की में इसे अनाया नजर आने लगी, जबकि वो बेताबाना लड़की की तरह बढ़ा और इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अब कहीं मत जाना प्लीज़ मेरी जान, पता है कितना बेचैन हूँ। तुम्हारे बगैर कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। मेरे ख्वाबों, ख्यालों और सोचों में बस तुम ही बस गई हो। क्या जादू कर दिया है मुझ पर तुमने। पर अब बस, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम बस मेरी हो, मैं तुम्हें शहीर के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहकर उमर ने मजीद गिरफ्त तंग की कि लड़की जो इसकी बातें इंजॉय कर रही थी, इसका दम घुटने लगा। उफ साइको मैन, छोड़ो मुझे, मार तो कि क्या। लड़की ये तो समझ गई थी कि वो नशे में किसी और को तस्वर कर रहा है, वो तो बस इसकी बातें सुन रही थी। लड़की ने ज़बरदस्ती खुद को छुड़वाया और इसे धक्का दिया, जिससे वो पीछे चेयर पर गिर गया, जबकि लड़की बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। और उमर नशे में ही शराब की बोतल को सीने से लगाकर आंखें मूंद कर बड़बड़ाने लगा। फिर से चली गई होना, कहा भी था ना जाना। बहुत याद आती हो, पर तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानती। जबकि जोली के कुछ फ्रेंड्स जो कि क्लब आए हुए थे, उन्होंने जोली को फ़ोन करके उमर का बताया, और वो जब क्लब पहुंची तो उमर ज़मीन पर गिरा हुआ था और बोतल को वैसे ही सीने से लगाया हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। जबकि जोली ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे अपने दोस्तों की मदद से ज़मीन से उठाया और इसके बाजू अपने कंधे पर रखकर खुद इसकी कमर को पकड़ा और हाँफती हुई इसे गाड़ी तक लेकर आई। इस दौरान इसकी बड़बड़ाहट जारी रही, जिसमें सिर्फ अनाया ही थी। जोली को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन लब भेंच कर रह गई। जोली ने इसे गाड़ी में बिठाया और खुद गहरे गहरे सांस लेने लगी। फिर गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर उमर के घर के रास्ते की तरफ गाड़ी डाल दी। इस दौरान उमर भी मुकम्मल होशो हवास से बेगाना हो गया था। जोली ने लब भेजकर इसे देखा, एक हाथ से कंधे से पकड़कर झंझोड़ा, पर बेसुध। अनाया ने चूंकि कल अबॉर्शन के लिए जाना था, इसे पता था कि इसके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, इसलिए वो चाहती थी कि कम से कम आज का दिन वो सारी तकलीफ को भूलकर अपने घर वालों के साथ अच्छे तरीके से गुजारे। इसने आज खुद हमज़ा को फ़ोन किया था। इतने दिनों के बाद अनाया की तरफ से आने वाली कॉल ने हमज़ा को भी खुश कर दिया था, वरना तो अब वो कॉल करता रहता था, लेकिन अनाया अटेंड नहीं करती थी। शरारतें कह के खुशियाँ तो जैसे रूठ कर रह गई थी इनसे। इनकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया था कि सब कुछ बहाकर ले गया। हमज़ा ने कॉल रिसीव की तो अनाया की चहकती आवाज़ ने जैसे इसके अंदर नई रूह डाल दी हो। ओए लंगूर, कहाँ हो। जबकि खुशी से हमज़ा की आंखों में नमी फैल गई, जिसे हमज़ा ने अपनी आंखों से साफ किया और अपनी आवाज़ को नॉर्मल करके अनाया को जवाब दिया, क्यों बिलबतौरी, तुम्हें आज कैसे याद आ गई मेरी। बस मैंने सोचा ये एहसान तुम पर कर ही दूं, क्या याद करोगे कि किस सखी दिल से पाला पड़ा था। ओ बस बस आ जाओ ज़मीन पे, ज़्यादा आसमान पर उड़ने की ज़रूरत नहीं, इतनी तुम सखी दिल। चल बेटा निकल आओ ख्वाब से बाहर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए लंगूर के खुद से तुम्हें किसी लड़की ने मुखातिब किया है, वरना तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही अगले बंदे को उल्टी आ जाए। अबे चल, मेरे जैसा हैंडसम बंदा कभी देखा भी है। बेटा ये तेरी जलन बाहर निकल रही है, जो तू जल रही है मेरी ब्यूटी से। कौन सी ब्यूटी, गोरी चमड़ी से कौन सी ब्यूटी होती है। और इस पर एक अदद फैला नाक। तौबा, अनाया अपनी बात पे खुद ही हंसती, जबकि हमजा सुलग कर रह गया। अच्छा तो आप जनाब की कौन सी ब्यूटी है, ज़रा बयान कर
है ना, चाय पी पी कर तो तुमने अपने खून के साथ ब्यूटी भी जलाई हुई है। हमजा ने इसके गंधमी रंग पर चोट की क्योंकि इस बात पर वह बहुत चिढ़ती थी, जबकि सच में अनाया गुस्से से लाल पीली हो गई, जबकि हमजा को इसकी हालत सोच सोच कर गुदगुदी होने लगी। तुमसे जैसे गोरी चमड़ी वाले क्या जाने, असल ब्यूटी ही गंधमी रंग में होती है और बड़ी बड़ी आंखें, ऊपर से तीखी नाक, उफ तुम्हारी तरह फैनी नहीं मैं, और ऊपर से चुनी आंखें, हाँ हाँ, जब मुंह पे नजर पड़े तो नाक देखकर ही हंसी निकल जाए। जबकि अब की दफा हमजा को आग लग गई। हमजा ने बेख्तियार अपनी नाक पर हाथ लगाकर देखा, जबकि ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपनी आंखें इसे तो ठीक ही लगी। हमजा को तब चढ़ गई, कहाँ से फैनी नाक है मेरी, हाँ, और आंखें भी ठीक हैं। जबकि अनाया को इसकी पतली हालत देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और वो खिलखिलाकर हंस दी, जिस पर हमजा भी जरेला मुस्कुरा दिया। इतने दिनों बाद अनाया को ऐसे देखकर हमजा की जान में जान आई थी, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे अब सारी जिंदगी भी अनाया नॉर्मल नहीं हो सकेगी। लेकिन हमजा को ये नहीं पता था कि नॉर्मल तो वो वाकई ही नहीं, इसीलिए तो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। अच्छा यार, बातों में भला ही दिया तुमने सब। मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था कि आज डिनर हमारे साथ करोगे और इसके बाद हम बाहर कुछ देर के लिए आउटिंग पर जाएंगे। ओके, टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है जनाब, जो हुक्म आपका। उमर को होश आया तो वो अपने कमरे में था। इसने सोफे पर देखा तो इसके डैड बैठे नजर आए, जो संजीदगी से इसकी तरफ देख रहे थे। क्या यार डैड, ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हालत बनाई थी तुमने रात अपनी? हाँ, अगर वो जोली लड़की तुम्हें घर ना लेकर आती तो अब तक पड़े होते वहां पर तुम। मैंने तुम पर कभी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई, तुम्हें खुलकर जिंदगी इंजॉय करने दे रहा हूँ। दौलत की रेल पेल कर दी तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम शराब पी पी कर यूं हवा से खो दो और लवाशों की तरह पड़े रहो किसी कोने में। दरार साहब सख्त गुस्से में थे उमर की रात वाली हरकत पर। तुम्हारी माँ रात से तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है, पता भी है कुछ? अच्छा, उमर ने तंजिया कहा, अब आप लोगों को ख्याल आ गया कि आपका एक बेटा भी है, वरना तो आज तक नौकरों के आसरे पर ही छोड़ा होता है मुझे। खाना मुलाजिम दें, सोते में भी मुझे मुलाजिम उठाएं, हर काम मुलाजिम करें। याद भी है कि कितने दिनों के बाद आप मेरे कमरे में आए हैं। सॉरी डैड, अब मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो मर्जी करूँ, आप कुछ भी पूछने का हक नहीं रखते। और ना ही मॉम मेरे लिए परेशान हों, जाकर अपनी पार्टीज अटेंड करें आप दोनों। डैड, आपने मुझे दौलत तो बेतहाशा दी, लेकिन मुझे तवज्जो नहीं दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब तो मैं मुकम्मल बिगड़ चुका हूँ, अब शिकवा करने का कोई हक नहीं रखते। अच्छा, इतना तो हक रखते हैं कि पूछ सकें कि कौन है अनाया, जिसके लिए रात नशे में भी तुम बेकरार थे और बार बार बस इसी का नाम लिए जा रहे थे। दरा साहब ने तंसिया कहा, कितनी मर्तबा कहा है किसी लड़की को सीरियस मत लेना, लेकिन अब ये किस लड़की का भूत सवार कर लिया है तुमने खुद पर। जोली भी बता रही थी मुझे, जबकि उमर का दिल किया खुद के बाल नोच ले। अनाया के ख्याल से बचने के लिए इस कदर ड्रिंक की थी और इसका नाम ही नशे में पुकारता रहा, जबकि जोली जो इसकी शिकायतें लगाकर गई थी दिल कर रहा था इसका मुंह तोड़ दे। अनाया कौन है कौन नहीं, ये मेरा मसला है, आप जाएं यहाँ से, अभी मैं सोना चाहता हूँ। जबकि दराज साहब गुस्से से उठकर चले गए और उमर ने गुस्से से तकिया पकड़कर नीचे फेंक दिया और उठकर बैठ गया और सिगरेट सुलगा ली। डैड ठीक कह रहे हैं, मैंने ज़्यादा ही अनाया को सर पर सवार कर लिया है। कितनी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आई और आ भी सकती हैं, मुझे अब अनाया के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी शहीर की शादी इससे हो जाएगी कुछ दिनों तक। जबकि इस बात से फिर इसे अपने दिल में चुभन महसूस हुई, दिल में घुटन बढ़ने लगी, तो इसने एश ट्रे उठाकर दीवार पर मार दी। उफ, क्या हो गया है मुझे? मैं इस हालत से बहुत परेशान हूँ, अकड़ तोड़ तो आया हूँ उसकी, अब मुझे और क्या चाहिए? जबकि उमर उठा और अलमारी की तरफ किया, जिसमें से एक स्कार्फ बाहर निकाला। इसने वो स्कार्फ अनाया का था जो शहीर ने इसे गिफ्ट किया था। अनाया ने मज़ाहमत के दौरान उमर के बाजुओं पर बहुत खराशें डाल दी थी, जिससे इसका खून निकल रहा था, और इसने इसी का स्कार्फ अपने बाजुओं पर बांध लिया था और जल्दी जल्दी में ये स्कार्फ भी अपने सामान में रखकर यूएस के लिए निकल गया था। उमर ने वो स्कार्फ पकड़ा और बेड पर लेट गया। क्यों याद आ रही हो मुझे? प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो या एक दफ़ा दोबारा मिल जाओ। मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता है जब मैं तुम्हें शहीद के साथ सोचता हूँ। उमर ने वो स्कार्फ नाक के करीब किया
और गहरा सांस लिया। तुम्हारी इसी खुशबू ने पागल किया हुआ है मुझे। कहीं से ये खुशबू नहीं मिल रही जिसका दीवाना हूँ मैं। उमर ने वो स्कार्फ अपने मुंह पर ले लिया और गहरी गहरी सांसें खींचने लगा, जैसे कि एक नशा आदि मरीज हो। शहीर ने डिनर नहीं किया था जिसके लिए फरहत बेगम इसके रूम में इसे बुलाने आई, लेकिन सिगरेट के धुएं और स्मेल से इनका दम घुटने लगा और इनको खांसी होने लगी। शहीर जो अभी भी स्मोकिंग कर रहा था, इसने जल्दी से सिगरेट एश ट्रे में मसला और जल्दी से आगे बढ़कर अपनी मॉम को पानी पिलाया। इस दौरान वह खिड़की के पर्दे हटाने लगा ताकि धुआं बाहर जा सके। वो तो आदी हो गया था इस धुएं का। इसने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना शुरू कर दी थी। ऑफिस में भी इसके मुंह में सिगरेट ही रहता था, जो कि वर्कर्स भी अब नोट करने लगे थे, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं सकता था। वजह शहीर का हर वक्त गुस्से में रहना था। वो एक छोटी सी गलती पर भी सबको सुना देता था। अरसलान कितनी दफ़ा इसे टोक चुका था कि स्मोकिंग छोड़ दे, लेकिन वो एक कान से सुनता तो दूसरे कान से निकाल देता था। फरहत बेगम ने गौर से शहीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों के नीचे हल्के नुमायाँ हो रहे थे, जो कि इसकी रात जागने की वजह से थे और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से होंठ भी अपना रंग बदल रहे थे। लेकिन वो क्या करती, ना तो प्यार से समझता था और ना गुस्से से, बल्कि गुस्सा करने पर तो हत्थे से उखड़ जाता था। इसलिए अब उन्होंने इसे कहना ही छोड़ दिया था। शहीर, तुम डिनर के लिए नीचे क्यों नहीं आए? बस मॉम, भूख नहीं है, ऑफिस में लंच काफ़ी देर से किया था इसलिए। लेकिन बेटा थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं नहीं मॉम, प्लीज़ अभी भूख नहीं, जैसे ही लगे कि मैं खाना खा लूँगा आप परेशान ना हो। बेटा खुद को सज़ा देना छोड़ दो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझ पर क्या गुजरती है तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर नहीं रह सकते अनाया के बगैर तो इसे अपना लो। देखना वो वक्त भी आएगा जब इसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। तुम नहीं जानते कि अनाया ने क्या हाल कर लिया है अपना। वो इसी उम्मीद पर है कि कभी तो तुम इस पर यकीन करोगे। बेटा थोड़ा अपना दिल बड़ा करो, मोहब्बत करने वालों के दिल तो बहुत बड़े होते हैं। तुमने क्यों अपना दिल इतना तंग कर लिया है? मॉम, मेरा दिल बड़ा तो है, लेकिन धोखेबाजों के लिए नहीं। धोखा देने वालों से मुझे शदीद नफरत है। ये बोलकर शहीर अपनी बालकोनी में खड़ा हो गया। प्लीज़ मॉम, आप आराम करें, जाकर मेरी तरफ से परेशान होना छोड़ दें। बहुत जल्द आपको बहू भी ला दूंगा कोई। कुछ वक्त दें मुझे, पर अनाया का नाम ना लें आप। हमजा डिनर के लिए अनाया के घर आ गया था। आज अनाया भी खुद से बाहर आई थी। वाह हमजा भाई, बड़े अच्छे टाइम पर आए हैं, आए खाना खाएं। सानिया ने हमजा को देखकर कहा। वाह हमजा भाई, आप हमारे साथ डिनर करेंगे? नेहा ने चहकर कहा। हाँ बेटा, मैं तुम लोगों के साथ ही डिनर करूँगा। अनाया ने फ़ोन किया था। जबकि सब ने हैरानी से अनाया की तरफ देखा कि इसने खुद कॉल की, और वो भी हमजा को। हाँ, मैंने खुद ही बुलाया था हमजा को। एक्चुअली मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, तो हमजा को इसलिए बुलाया। जबकि सदीकी साहब ने ये पहले ही मोहब्बत तब्दीली नोट की थी। अनाया में वो खुश हो गए कि इनकी बेटी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, थोड़े वक्त के लिए बाहर जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया, जिस दौरान अनाया और हमजा की नोक झोंक भी जारी रही थी। जबकि इतने दिनों के बाद अपनी बेटी को ऐसे देखकर आसिया बेगम की आंखों में खुशी से आंसू आ गए और उन्होंने चुपके से अपने आंसू साफ किए। कुछ यही हाल सानिया का भी था। जबकि सदीकी साहब तो डिनर के फ़ौरन बाद शुक्राने के नफल अदा करने चले गए। इन्हें अपनी सब बेटियों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अनाया का एक ख़ास मुकाम था। वो इनकी पहली लाडली औलाद थी, जिसने इनके घर में चहचहाट बिखेर दी थी। वह बहुत चुलबुली और शरारती आदत की थी, जो कि अब भी इसमें मौजूद थी। लेकिन अब इसकी हालत देखकर इनका दिल कटकर रह गया था। वो ऊपर ऊपर से सख्त रहते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत जतानी नहीं आती थी, लेकिन ये तो इनका दिल और इनका खुदा जानता था कि किस कदर वो अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं। सानिया, नेहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब बाहर आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। नहीं आपी, आप और भाई जाएं, हम नहीं जाएंगे, हमें नींद आ रही है, सानी ने जल्दी से कहा, क्योंकि बहुत अरसे के बाद वो दोनों दोस्त इकट्ठे हुए थे और वो चाहती थी कि दोनों ही अपने दुख सुख एक दूसरे से बांट सके, जिससे इनके दिल का बोझ कम हो।
हमजा और अनाया बाहर आए तो शहीर बालकोनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। चूंकि दोनों के घर साथ साथ थे इसलिए नजर आता था इनकी नजर तो नहीं पड़ी शहीर पर, लेकिन शहीर ने इन्हें देख लिया, जिससे शहीर का फिशारे खून बुलंद हुआ। इसने वहीं पर सिगरेट फेंकी और नीचे चला गया। घर से बाहर निकला तो हमजा और अनाया गाड़ी में बैठ रहे थे, जबकि शहीर ने अनाया का बाजू पकड़कर इसे गाड़ी में बैठने से रोका और अपने मुकाबिल खड़ा किया। शहीर ने इस कदर जोर से बाजू पकड़ा था कि अनाया को लगा कि जैसे इसकी बाजू की हड्डी चटक गई हो। तकलीफ से अनाया ने अपनी आंखें मींच ली। जबकि शहीर ने गौर से अनाया को देखा तो वाकई ही बहुत कमज़ोर हो गई थी। आंखों के नीचे हल्के और जर्दी माइल रंगत, दिल तो क्या खींचकर सीने से लगा ले 1 इंच के फासले पर ही तो खड़ी थी। वो जो इसकी अव्वलीन ख्वाहिश थी, जिससे मोहब्बत इसने बचपन से की थी, लेकिन हमजा को देकर इसे खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल लगा। अपनी अय्याशियों और बदकिरदारियों से दिल नहीं भरा जो फिर से मुकाला करने के लिए कहीं जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना कुछ करके भी शेर बनकर घूम रहे हो दोनों। जबकि हमजा ने जबत से शहीर की तरफ देखा। बोलो, जवाब दो। शहीर ने अनाया को झंझोड़ कर रख दिया। मुझे तन्हाइयों का बासी बनाकर खुद अय्याशियाँ कर रही हो, पेट में अपने दोस्त का बच्चा भी लिए घूम रही हो। वाह, क्या दोस्ती है तुम लोगों की, अल्लाह ऐसी दोस्ती से बचाए। जबकि अनाया ने सुर्ख नज़रों से शहीर को देखा। हाँ, नहीं शर्म आती मुझे, छोड़ो। जब तुम्हें यकीन ही नहीं मुझ पर तो मैं क्यों अपनी सफाई दूं, खुद को तुम्हारे आगे क्यों बेमोल करूं। अफसोस शहीर, तुमने मोहब्बत तो की लेकिन एतबार ना कर सके। काश तुम मुझसे मोहब्बत ना करते लेकिन एतबार कर लेते। जब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता लगेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी शहीर। शायद तब तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। जबकि शहीर ने अनाया को गुस्से से छोड़ा और खुद अपने घर की तरफ चल दिया। असल में इसे अनाया की आंखों की बेबसी नहीं देखी गई, लेकिन वो किसी धोखे में नहीं आना चाहता था। जबकि अनाया ने आंखों से आंसू साफ किए और हमजा की तरफ मुस्कुरा कर देखा। चलें, देर हो रही है। जबकि हमजा ने तकलीफ से भरी मुस्कुराहट होंठों पर सजाई और गाड़ी में बैठ गया। जारी है। तो प्यारे रीडर, कैसी लगी आज की लॉन्ग स्पेशल एपिसोड? अब इतनी लॉन्ग एपिसोड दी है तो मुझे आप सबके लॉन्ग लॉन्ग कमेंट्स भी चाहिए। और आप सबसे आपकी प्यारी राइटर की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। और प्लीज़ मेरे इस चैनल पर 1K मुकम्मल करने में मेरी मदद करें। अपने दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और इस चैनल के सब्सक्राइबर मुकम्मल करने में मेरी मदद करें। और सौदा दिल का नावल के प्यारे रीडर्स, अगर आप लोग चाहते हैं ये नावल फिर से कंटिन्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के 1K मुकम्मल करने में मेरी मदद करें, क्योंकि जैसे ही इस चैनल पर सब्सक्राइबर मुकम्मल होंगे सौदा दिल का नावल की एपिसोड अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद है आप मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मानेंगे और इस मिशन में मेरा साथ देंगे। खुश रहें, जज़ाकल्लाह खैरा। तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।